السلام علیکم. پروگرام شہر شہر کے ساتھ میں ہوں وریبہ خان. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا ہے کہ ملک میں امن ہوگا تو ہی ترقی ہوگی. دہشت گردی کا سر کچلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. SIFC کی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. معاشی اشاریے بتا رہے ہیں نیا سال پاکستان کے لیے اچھی خبر لائے گا. یہ سارا سلسلہ پھر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ملک میں مکمل امن ہو. سیکورٹی ہیز بیکم اے چیلنج ٹوڈے. آج نے دوبارہ سر اٹھایا تو اس کا سر کچلے بغیر ہم اپنا آگے نہیں بڑھ سکتے. اینڈ the target is to defeat this monster again, hands down. تو اس کے لیے ہمیں سب کو پھر اکٹھا ہونا ہوگا, ایک پیج پہ ہونا ہوگا. میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تارا چنار میں اب کل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, تو درجہ بدرجہ جنہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کی ہے وہ سب مبارکباد کے لائق ہیں. کرم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں. 130 سال پرانے پارا چنار تنازع پر فریقین کے درمیان تاریخی معاہدہ ہونے کے باوجود صورتحال معمول پر نہیں آ سکی ہے. راستوں کی بندش اور کرم میں تاحال دھرنے جاری رہنے سے روزمرہ کے امور بحال نہیں ہو سکے. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا ہے کہ کرم میں ہفتے سے راستے کھول دیے جائیں گے. 130 سالہ پارا چنار تنازع کے مستقل حل کا معاہدہ ہو گیا. تاہم امن معاہدے کے باوجود کرم میں تاحال زندگی معمول پر نہ آ سکی. راستہ بند ہونے سے عوام کی مشکلات برقرار ہیں. راستوں کی بندش اور بد امنی کے خلاف ضلع کے 4 مقامات پر دھرنا اب بھی جاری ہے. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے پیغام دیا کہ دھرنوں کے امن اور سڑک کھولنے کے دونوں مطالبات پورے کر دیے. دھرنوں کا اب کوئی جواز نہیں رہا. تحصیل چیئرمین اپر کرم آغا مزمل حسین نے واضح کیا کہ دھرنے کے اہم مطالبات میں سڑک کا تحفظ ہے. جب تک روڈ محفوظ نہیں بن جاتا تب تک دھرنا جاری رہے گا. اس سے قبل کوہاٹ میں 3 ہفتے سے جاری گرینڈ جرگے میں فریقین نے 14 نکاتی معاہدے پر دستخط کیے. عمل درآمد کے لیے فریقین کی 16 رکنی کمیٹی بنا دی گئی. دونوں اطراف سے 45 ممبران نے معاہدے پر دستخط کیے. کرم معاہدہ 7 صفحات پر مشتمل ہے. معاہدے کے تحت فریقین کے درمیان سیز فائر کا فیصلہ ہو گیا. مورچے ختم اور اسلحہ جمع کرایا جائے گا. فریقین ایپیکس کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے. معاہدے کے تحت 1 مہینے کے اندر بنکرز ختم کریں گے. ذیلی کمیٹی مورچوں کی مسماری کی نگرانی کرے گی. نقصانات کا ازالہ خیبر پختونخوا حکومت کرے گی. 2008 کا مری معاہدہ بھی برقرار رہے گا. فریقین پر مشتمل 16 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. تصفیے کے مطابق سوشل میڈیا پر دونوں فریقین میں سے پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. آمد و رفت کے لیے تمام راستوں اور سڑکوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. بجلی ٹیلی فون یا کیبل گزارنے پر مسائل کھڑے نہیں کیے جائیں گے. نئی سڑکوں کی تعمیر کی ضرورت پڑی یا ان میں کوئی رکاوٹ آئی تو فریقین مکمل تعاون کریں گے. معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی ایکشن ہوگا. ممبر جرگہ ساجد توری نے معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اب بال خیبر پختونخوا حکومت کے کورٹ میں ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ معاہدے پر کس طرح عمل کراتی ہے. رحیم یار خان اور وہاڑی میں سرکاری ملازمین مطالبات کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں. رحیم یار خان کے سرکاری اساتذہ اور پروفیسرز نے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دیا. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ پینشن اور 17A کے تحت ملازمین کی نوکریوں کو بحال کیا جائے. وہاڑی کے سرکاری ملازمین نے احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دیا. مظاہرین نے پینشن رولز میں ترمیم 17A رولز ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا. اور اب آپ کو بتائیں کہ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق 2 افراد کو سیالکوٹ میں ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. اسلام آباد اور گجرات سے مزید 4 انسانی اسمگلرز پکڑے گئے. یونان کشتی حادثے میں جاں بحق 2 افراد سیالکوٹ میں اپنے آبائی علاقوں میں سپرد خاک. یونان میں کشتی حادثے میں جان گنوانے والے 13 سالہ عابد جاوید کی لاش سیالکوٹ میں گاؤں موری کے ججا پہنچائی گئی. عابد کی نماز جنازہ میں اہل خانہ، رشتہ داروں اور علاقہ مکینوں نے شرکت کی، جس کے بعد اسے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے ایک اور شخص عبداللہ کی میت سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے گاؤں کوریکی میں لائی گئی. غم سے نڈھال اہل خانہ اور علاقہ مکینوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس کے بعد تدفین کر دی گئی. FIA حکام کا کہنا ہے کہ یونان کشتی حادثے میں اب بھی 49 پاکستانی لاپتہ ہیں. دوسری جانب گجرانوالہ FIA ٹیم نے گجرات میں کارروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 2 ملزمان محمد رضا اور مہدی حسن کو گرفتار کر لیا. ملزم محمد رضا نے شہری کو کینیڈا ملازمت کا جھانسا دے کر 13 لاکھ روپے اور مہدی حسن نے شکایت کنندہ سے ایران بھجوانے کے نام پر
1,30,000 रुपए बटोरे थे। उधर FIA इस्लामाबाद जोन ने कार्रवाई करते हुए लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर दिए। लाहौर से खबर आपको देंगे। लाहौर में सर्दी बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग ने कमर्शियल सार्फिन को मुश्किल में डाल दिया है। कमर्शियल सार्फिन महंगी LPG खरीद कर अपना कारोबार चलाने पर मजबूर हो गए। तफसीलात नुमान लियाकत की रिपोर्ट में देखिए। गैस बंदिश ने घरेलू सार्फिन के बाद कमर्शियल सार्फिन को नई मुश्किल में डाल दिया। गैस की किल्लत के बायस होटल, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल्स और दीगर कारोबार मंदे का शिकार होने लगे। गैस नहीं आते, इसी वजह से हम फिर भी LPG इस्तेमाल करते, और हम कारोबारी बंदे एफोर्ड नहीं कर सकते, इसी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम है। दुकानदारों ने बताया कि मुश्किलात का फायदा उठाते हुए LPG माफिया ने गैस की कीमतों में भी खुद साख्ता तौर पर इजाफा कर दिया है और फी किलो कीमत 320 से 30 रुपए कर दी है। गैस तो बिल्कुल आ नहीं रही सर, 3 महीने हो गए, सर्दी में तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। LPG जो है ना वो 13,500 से पहुंच गई है। अगर हम LPG इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सर्किट नहीं चल सकता। कारोबारी जो बंदा होता है ना वो बिल्कुल इस पे गुजारा नहीं कर सकता। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि कुछ गरीब बंदे का भी ख्याल कर ले। कमर्शियल सार्फिन ने इल्तिजा की कि हुकूमत कारोबारी तबके को गैस फराहम करने के इकदामात करे ताकि इनका और कारोबार के साथ जुड़े मुलाजमीन का रोजगार चलता रहे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज, लाहौर। मौसम सरमा आते ही लाहौर में गैस लोड शेडिंग के हवाले से हमने आपको आगाह किया। अब आपको बताएं कि रहीम यार खान में सर्दी के दौरान नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और सीने के अमराज बढ़ने लगे हैं। ज्यादातर बच्चे, खवातीन और मौमर अफराद सर्दी की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। जावेद अब्बास चौधरी रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान में खुश्क सर्दी के बायस बच्चे, खवातीन और बूढ़ों समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौसमी बीमारियों में मुब्तला होने लगी। सांस लेने में दुश्वारी, गले की खराबी, खांसी, नज़ला और बुखार के अमराज में इजाफा हो रहा है। धुंध भी बढ़ गई है और ठंड बहुत बढ़ गई है और डॉक्टरों के पास भी बहुत रश है। मेरी अपनी तबीयत जो है वो ठंड की वजह से जो है बेहतियाती की वजह से ख़राब हो गई है और 5 दिन हो गए मैं अस्पताल आ रहा हूँ और अस्पताल में भी बहुत रश है। रात थोड़ी सी बेहतियाती की वजह से जो है वो तबीयत खराब होगी, ठंड लग गई है, दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए खबरदार कर दिया। आम लोग भी नज़ला, जुकाम, खांसी और फ्लू की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, तो इस मौसम में हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स अडेप्ट करने चाहिए। प्रिकॉशनरी मेजर्स में सिंपल, आप बाहर निकलें तो आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, फ्रीक्वेंट फेस वॉशिंग करें और हॉट लिक्विड्स का इस्तेमाल करें, गर्म पानी, सूप का इस्तेमाल करें और यखनी पिएं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि बिला जरूरत घरों से निकलने से गुरेज करें। बाहर निकलते वक्त खुसूसी तौर पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जावेद अब्बास चौधरी, डॉन न्यूज, रहीम यार खान। शहर शहर में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। शहर शहर से मैं एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और आपको बताएं कि रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में पुलिस और इंधर गैंग के दरमियान मुकाबला हुआ है, जिसमें मतलूब खतरनाक डाकू मीर हसन उर्फ बरगा मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू सब इंस्पेक्टर रमजान और 12 अहलकारों की शहादत में मुलविस था और कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैतियों और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस हुकाम का कहना था कि हलाक डाकू के मफरूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। मुल्तान में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमनो अमान के हवाले से सर्च ऑपरेशन करके घरों, किराएदारों और अहम मकामात की चेकिंग की है। सर्च ऑपरेशन अलनूर कॉलोनी, तारिकाबाद और शरीफ कॉलोनी में किया गया, जिसके दौरान 33 से जायद घरों समेत 3 किराएदार और दीगर अहम मकामात की चेकिंग की गई। 51 अफराद की CRO चेक किए गए और 10 व्हीकल्स की भी चेकिंग की गई। और आपको बताएं कि कराची में बुनियादी सहूलियात से महरूम बल्दिया इत्तेहाद टाउन के नौजवानों में मुनशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए ताजिर ने बीड़ा उठा लिया है। खवातीन और मर्दों के लिए जदीद वर्जिश क्लब खोल दिया। मजीद तफसील आसिम खान की रिपोर्ट में देखिए। ये किसी पोश इलाके का जिम नहीं बल्कि बल्दिया इत्तेहाद टाउन का बुनियादी सहूलियात से आरी इलाका है। इस इलाके में मुखैर ताजिर की जानिब से वर्जिश के लिए जदीद एक्सरसाइज मशीनों पर मुश्तमिल फिटनेस क्लब नौजवानों में खूब मकबूलियत हासिल कर रहा है। मुझे ये ख्याल आया अपने इलाके की जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनके हवाले से कि ताकि इनके अंदर जो हमारे इर्द का माहौल है नशत वगैरह का, तो हमें नौजवान नस्ल की फिक्र हुई कि हमारी नौजवान नस्ल इस चीज़ों से बचे और उनको ऐसी एनवायरनमेंट दी जाए
ताकि जो उनकी सेहत भी हो जाए और हमारे इलाके वाले, हमारे आने वाले बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तिहाई मुनासिब कम फीस में, और इसके लिए तलबा के लिए, स्टूडेंट के लिए, उलमा कराम के लिए, असातिज़ा के लिए भी हमने पैकेज रखा है। बाकी इसके अलावा हमने लेडीज़ के लिए भी इसके लिए मखसूस टाइम रखा है। पसमानदा इलाके में सेहतमंद सरगर्मी शुरू होने पर इलाका मौजूदीन भी खुश हैं। इत्तेहाद टाउन के जिम में तमाम जदीद सहूलियात मुहैया करके नौजवान ताजिर ने साबित किया कि पसमानदा इलाकों में भी ऐसी सरगर्मियों की बदौलत मुस्तकबिल के मेहमारों को महफूज और मजबूत किया जा सकता है। ऐसी सरगर्मियाँ के नौजवानों को नशे से, गुटखे से, मावे से, ड्रामों से, फिल्मों से या इस तरह की क्राइम से, बुरी आदत में पड़ने से कैसे बचाया जा सकता है। आप उसका ऑल्टरनेट कुछ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चीज़ें जब आप मुआशरे में प्रमोट करेंगे, जैसे फिटनेस क्लब है। पसमानदा इलाके में नौजवानों के लिए और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए इतना महफूज और बेहतरीन निज़ाम जिस्मानी सरगर्मियों के लिए अच्छी नीयत के साथ, गालिबन ये मैं नफ़ी नहीं करता हूँ किसी का, ये पहला जिम है जो इत्तेहाद टाउन में तमाम तर सहूलतों और हिफाजती तदाबीर के साथ बनाया गया है। कैमरामैन नोमान सिद्दीकी के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज़ कराची। यहाँ आपको बताएं कि साल 2024 सिंध की आला अदालतों के लिए तब्दीलियों का साल साबित हुआ। सिंध हाई कोर्ट में मुल्क में सबसे पहले आईनी बेंचेस कायम हुई। जजेस के कई बरसों से खाली नशिस्तों पर मजीद जजेस का तकर्रुर भी हुआ। तहम उन सब के बावजूद सिंध हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 89,000 तक जा पहुंची। शफी बलोच रिपोर्ट करेंगे। सिंध की आला अदालतों में 2024 के दौरान ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ मजीद बढ़ गया। 2024 के इख्तिताम पर सिंध हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट कराची में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 67,147 हो चुकी है। हैदराबाद सर्कल बेंच में 9,031, सक्कर बेंच में 5,549, लाड़काना बेंच में 4,233 और मीरपुर खास बेंच में 2,990 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। कानूनी माहिरीन के नजदीक इंसाफ में ताखिर से अदलिया के निजाम पर शहरियों का एतमाद कम हो रहा है। कानूनी माहिरीन मानते हैं कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में कमी के लिए जजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा और गैर मामूली इकदाम करना होंगे। जजेस की कमी है तो उसमें यहाँ 40 थे, 40 की है कि 40 होने चाहिए, उसमें 27-28 काम कर रहे हैं, 12-13 वैकेंसीज खाली हैं। और अभी हमने जो हमारी रजिस्ट्रियाँ है वो बढ़ा दी है, मीरपुर खास बढ़ी है और सक्खर की स्ट्रेंथ ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, लाड़काना में बड़ी कंटिन्यू बेंच होनी चाहिए और उसमें भी जजेस में होंगे, हैदराबाद में भी होंगे। पूरी ओवरऑल सिंध की जो बात है उसमें जजेस, मेरी डिमांड थी कि 60 या 100 होने चाहिए, जजेस होने चाहिए। कराची की जिला अदालतों में भी साल भर फौरी इंसाफ का हुसूल ख्वाह भी रहा। मौजूद क्रिमिनल कोर्ट्स, सनफी बुनियादों पर तशद्दुद के लिए अलहदा कोर्ट्स, यूटिलिटी कोर्ट्स के कायम के बावजूद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का दबाव कम न हुआ। 2024 के आगाज पर जिला अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात 86,368 थे, जो साल के इख्तिताम पर 87,609 हो गए। साल भर मुख्तलिफ नौइयत के 16,256 नए मुकदमात दर्ज हुए। 15,347 मुकदमात का फैसला हुआ और सिर्फ 11% क्रिमिनल मुकदमात यानी 238 मुकदमात में सजाएं सुनाई गयी। कानूनी माहिरीन नाकिस तफ्तीश, तेजी से बढ़ती हुई आबादी और अदलिया में अफरादी कुव्वत की कमी को इंसाफ में ताखिर की वजह बताते हैं। सिंध में जो केसेस की डिले हो रही है उससे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो जजेस की रेशो है वो भी कम है। खास करके कराची की जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो कोर्टों का तादाद है सिटी कोर्ट में वही है, बिल्डिंगें भी वही है और जो हमारे पास स्टाफ है वो भी वही है जो आज से 10 साल पहले था। तो हमारी ये गुजारिश थी और रह चुकी है। हमने पहले 12 चीफ साहब को ये कहा है कि जो सिटी कोर्ट की जो प्रीमिसेस है उसमें कोर्टों की तादाद बढ़ाई जाए, स्टाफ की भी तादाद बढ़ाई जाए, जजों की भी तादाद बढ़ाई जाए, ताकि जो बर्डन ऑफ पॉपुलेशन है कराची के अंदर उसको देखते हुए जजेस को अपॉइंट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो डेवलपमेंट की जाए। 2024 में कराची की 5 जिले अदालतों में 1830 मुख्तलिफ मुकदमात में मुल्जिमान को बाज़त बरी किया गया, जबकि 353 मुकदमात में फरीकैन के दरमियान समझौता हुआ। कैमरामैन कासिम खान के साथ शफी बलोच, डॉन न्यूज़ कराची। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे और मौसम खुश्क होने की वजह से अस्पतालों में नज़ला, खांसी, जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों के मरीजों का रश बढ़ गया है। रिपोर्ट कर रही हैं ताइबा खान। सर्दी की खुश्क हवा और सर्द मौसम की वजह से मौसमी बीमारियों ने हर एक को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जबकि रवान साल नज़ला, खांसी, जुकाम का दौरानिया भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अस्पतालों में इन्हीं मौसमी बीमारियों की मरीजों की तादाद 50 से 60% तक का इजाफा हुआ है।
मेरी बहन थोड़ी सी बीमार है मुझसे, ये मौसमी बीमारियों की वजह से, क्योंकि जब से वो स्टार्ट हुआ है मौसम सरमा, तो अब से लेकर कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही और नज़ला ज़ुकाम ये बीमारियां काफ़ी फैल गई है इनमें से। तकरीबन 4-5 दिनों से नज़ला भी है, खांसी और ज़ुकाम है, लेकिन कई बार मतलब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मौसमी बीमारियों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह बारिशों का ना होना और फिजाई आलूदगी है। एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, या तो गाड़ियों की तादाद बहुत बढ़ गई है, फैक्ट्रियाँ इनकी एमिशंस बहुत बढ़ गई हैं, तो उसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ रही है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम। प्लस हम देख रहे हैं कि एक सीजनल फ्लू का स्ट्रेन जो इस बार वो बहुत तेज़ है। तिब्बी माहिरीन नज़ला, खांसी, जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचने के लिए मास्क का लाजमी इस्तेमाल करने और जिस्म को गर्म रखने के साथ साथ हाथों को साफ रखने का मशवरा देते हैं। कैमरामैन हजरत बिलाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़, पेशावर। शहर शहर में खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको खबर देंगे मटियारी के करीब कराची से पंजाब जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद अब ट्रैक जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहा। बोगियां डीरेल होने से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर नहीं हुआ। सिंगल लाइन वर्किंग के जरिए अप और डाउन ट्रैक की गाड़ियों को रवाना किया गया। मुल्क की तारीख का पहला फ़िज़ाई हादसा विहाड़ी के करीब पेश आया था, जिसमें तैयारे के अमले समेत 22 अफराद जाँ बहक हुए थे। ज़िला इंतजामिया की लापरवाही और गफलत के बाइस पाकिस्तान के पहले फ़िज़ाई हादसे की यादगार के आसार भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे हैं। देखिए शफकत टिप्पी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी तरीक का पहला फजाई हादसा 26 नवंबर 1948 को विहाड़ी से चंद किलोमीटर के फासले पर मोविबा के मुकाम पर पेश आया था, जहां पाकिस्तान एयरलाइन का जहाज गिरकर तबाह हो गया था। जहाज में सवार अमला समेत 22 अफराद लुकमा अजल बन गए। इस फजाई हादसा मुकाम पर जाँ बाग होने वाले 22 अफराद की कब्रों के अलावा तारीखी यादगार तमीर की थी, जो इस वक्त इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही के बायस टूट फूट का शिकार है। फजाई हादसा में जाँ बाग मुसाफिरों की कब्रें भी मस्मार हो चुकी हैं। बुजुर्गों से पता चला कि यहाँ स्टार्ट में तो बैरूनी मुल्क से भी लोग यहाँ देखने आते थे और जो जिनके लवाहिकीन थे वो भी यहाँ पर आया करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि इसकी कोई देखभाल नहीं की गई और देखभाल न होने की वजह से एक खस्ता हालत में मौजूद है। यहाँ मकामी बासर लोग इस यादगार के लिए मुख्य जमीन पर भी काबिज होते जा रहे हैं। एक गेट लगा हुआ था, यहाँ पे एक रास्ता बनाया गया था जो इस कब्रिस्तान के लिए या जहाँ पे जो शोदा जो तदफीन है उनके लिए यहाँ पे आने के लिए एक रास्ता था। यहाँ पे तब की बात है, नलका लगाया गया था पानी के लिए, गेट लगाया गया था, 4 दीवारी थी। लेकिन अब ये सारी यहाँ की हालत बड़ी खस्ता है, यहाँ पे कब्रों की बेहुरमती हो रही है। अगर इंतजामिया ने फौरी तौर पर तवज्जो न दी तो कुछ अरसा बाद इस तारीख की अहमियत की हामिल यादगार का नामो निशान बाकी न रहेगा। कैमरा टीम कैमरा शफकत टिप्पी, डॉन न्यूज़, विहाड़ी। और अब आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करें। आपको बताएं कि नया साल शुरू होते ही मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी ने खूबसूरत मनाजिर को मजीद निखार दिया है। मानसेरा के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के बाद सयाहों का रश बढ़ने लगा। सवात और कलाम में बर्फबारी ने वादी का हुस्न निखार दिया। मुल्क के बालाई इलाकों का मौसम सरमा में हुस्न जो बन पर है। बुलंदो बाला खूबसूरत पहाड़ी चोटियों समेत मैदानी इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ रखी है। मानसेरा के सयाहती मुकाम बट्टा कुंडी नारान में साले 9 की पहली बर्फबारी हुई। बालाकोट, ओगी, बफा के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी ने मौसम हसीन बना दिया। सयाहती मुकाम वाती कागान, नारान, शोगरान के पहाड़ों पर बर्फबारी ने इलाके का हुस्न दोबाला कर दिया। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम और दिलफरेब मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए इन मकामात का रुख कर रही है। सवात और कलाम में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से आए सयाह इन मनाजिर को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। स्वागत में बहुत मजा आ रहा है, हमें भी, आप भी आए और इधर एंजॉय करें। 2025 की ये पहली स्नोफॉल है और बहुत मजा आ रहा है और बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं स्वागत वाले भी। इंशाल्लाह दोबारा अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर हम चक्कर लगाएंगे, आप भी जरूर। 2025 की ये पहली स्नोफॉल है, जो सयाह स्नोफॉल का इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। वो भी जल्द से जल्द कलाम का रुख करें और इस स्नोफॉल को एंजॉय करें। इस गर्दों में बर्फबारी के बाइस मौसम इंतहाई सर्द है। इस दौर के बालाई इलाके भी बर्फ से ढके हुए हैं। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद बढ़ चुकी है। गुजरावाला में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया, जहां वो मछली पर खूब हाथ साफ करते नजर आ रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं इकबाल मिर्जा की इस रिपोर्ट में।
सर्दी में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में इजाफा हो गया। सरसों के तेल में फ्राई मछली लज्जत और जायके के एतबार से अपनी मिसाल आप है। पहलवानों के शहर में सर्दी का मुकाबला गर्मा गर्म फ्राई मछली से किया जा रहा है। गुजरांवाला में आए मेहमानों की तवाज़ो भी फ्राई फिश से की जाती है। हम जो है वो हैदराबाद सिंध से आए हैं और किसी फ्रेंड्स के पास आए थे और हमने उनसे मालूम किया था कि अच्छा खाना कहाँ मिलता है, तो हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो हमें यहाँ लेकर आए। गुजरांवाले के खाने हमें बहुत पसंद है। हमारे दोस्त ने कहा कि जो है यहाँ पर आपको फिश खिलाता हूँ और ये फिश बहुत मशहूर है। मछली की मांग में इजाफा होने से दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। हमारे पास है बेसन मसाले वाली फिश है हमारे पास, और ग्रिल फिश है, चिड़ा फिश है, मुश्का फिश है, शिंगारी है, सोल है, मली है, बाम है, बंगश है। इतने आइटम पूरे गुजरांवाले में कोई नहीं लगाता। मौसम सरमा में मछली जायके और लज्जत के साथ जिस्म को विटामिन और तवानाई भी बख्शती है। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरांवाला। और अब आपको बताएं कि पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद गैस की तवील लोड शेडिंग से घरदारी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। रिपोर्ट करी है पेशावर न्यूज से नुमाइंदा डॉन न्यूज ताइबा खान। माह दिसंबर की ठंडती सर्दी में भी गैस लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। सर्दियों में शहरियों को 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे गैस मुयस्सर है। ठंडेदार मौसम में बर्तनों और कपड़ों की धुलाई के लिए गर्म पानी की अदम दस्तयाबी से तो खवातीन का पारा ही चढ़ जाता है। ऐसे ही तवे पे रोटी डालो और वो बस नीचे से गैस खत्म, हांडी पकाओ, आधी हांडी पकती, आधी खत्म। फिर क्या करें, बच्चे भूखे सुबह जाते हैं, फ्रूट और ये चीजें वगैरह दे देते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई है। शहरियों का कहना है कि एक जानब गैस की आंग मचोली जारी है तो दूसरी जानब गैस के भारी भरकम बिलों की वसूली समझ से बालातर है। सुबह 1 घंटे का होता है, शाम को 1 घंटे का होता है। घरों में जो है ना बीवी बच्चों के आपस में झगड़े होते हैं, खाने वक्त पे नहीं पकता। बाहर से गैस लाना महंगा है क्योंकि वो सिलेंडर का गैस 350 रुपए किलो है। गैस तो है ही नहीं, घंटे डेढ़ के लिए आती है फिर गायब। न खाना पका सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। मेहमान आए शर्मिंदगी होती है हमें। कितनी अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट को ये एहसास ही नहीं है कि यार ये इंसान है, बिल तो डबल लेते हैं, गैस है ही नहीं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस लोड शेडिंग खत्म करके गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन असफंदियान अंजुम के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज पेशावर। जुड़े रहिए शहर के साथ। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहर से में हम आपको छोटे बड़े शहरों की खबरें दे रहे हैं और अब आपको खबर देंगे लाड़काना से, जहां पर लाड़काना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से इल्म के मतलाशियों के लिए 5 रोजा कुतुब मेले का इनेकाद किया गया है। जाहिद गुल अबड़ो की रिपोर्ट देखिए। लाड़काना के जिना बाग में इल्म के मतलाशियों के लिए कुतुब मेले में मुख्तलिफ अक़साम की किताबों के स्टॉल्स लगाए गए। तालिब इल्मों और शहरियों की बड़ी तादाद ने किताबें खरीदी और कुतुब मेले के इनेकाद को सराहा। लाड़काना में हमेशा इसी तरह के ये जो बुक्स फेयर कंडक्ट हो रहे हैं या होते हैं, उनमें हमारे यहाँ नौजवान भी पार्टिसिपेट करते हैं और ये होने चाहिए। ये लाजमी हिस्सा है क्योंकि बाशऊर फ़र्द के लिए इल्म की रोशनी के बगैर आदमी चल नहीं सकता। इस कुतुब मेले का मकसद नौजवानों को किताबों से आशनाई पैदा कराना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी गर्ल्स बॉयज़ जो डिफरेंट जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो लड़कियाँ लड़के हैं वो बहुत इंटरेस्टेड है। हमारे पास इधर डिफरेंट पब्लिकेशन के स्टॉल भी लगाए गए हैं। किताब से मोहब्बत और दोस्ती बहुत जरूरी है, ये रहनुमाई और इल्म का सबसे बड़ा जरिया है। जाहिद गुल अबड़ो, डॉन न्यूज, लाड़काना। आसमान से बातें करती महंगाई और गैस के बिलों में कई गुना इजाफे के बाइस लाहौर के गली महलों में हम्माम की रिवायत दम तोड़ने लगी है। तफसीलात नुमान लियाकत की इस रिपोर्ट में देखिए। दुकानों के बाहर लटकते तौलिए हमाम होने की पहचान होते थे। कहीं गैस वाले तो कहीं लकड़ियों पर चलने वाले गीजर हुआ करते थे जिनसे पानी गर्म किया जाता था। लोग शेव करवाने के बाद नहाकर इसी हमाम में तैयार हुआ करते थे, लेकिन महंगी गैस और लकड़ियों की वजह से ये रवायत दम तोड़ती जा रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि पहले लोग जो उनसे थे ना अपने अखराजात पूरे कर लेते थे। लोग हमामों में आते थे, नहाते थे, शेव कराते थे तो उनके गुजर बसर हो जाता था, हमारा भी हो जाता था। अब महंगाई इतनी हो गई है कि इसका नाम क्या, लोग अपने घरों में शेवे करते हैं, नहाते हैं और हमामों कारोबार जो उनसे ना इतना नहीं रहा जितना पहले होता था। रेट महंगा जी, गैस पर 150 रुपए नवाइए और गाँव का शैम्पू साबुन दविंदा साफ सुथरा सब और तुम्हारा हमाम खत्म हो चुके हैं।
शहरियों ने भी दौरे जदीद में हमाम खत्म होने की अहम वजह महंगाई को करार दिया है। गली महल्ले च मौजूद सी गुजरे वक्तां च गालबन महंगाई ने जड़ा ने ते असर कीता और लोग जड़े ने दुकानदार खसूसन बड़े थोड़े पैसे सर्विस देंदे ने, शायद उन्हां दा गुजारा नहीं हो पांदा किरायां दी वजह तो, बिलां दी वजह तो, महंगाई दी वजह तो। ये बहुत जरूरी चीज है, अवाम नूं इहदा बड़ा फायदा है। हमाम के कारोबार से वाबस्ता अफराद का यही कहना है कि गैस के बिलों को कंट्रोल किया जाए और लकड़ियों के दाम भी कम करवाएं ताकि बचे कुचे हमाम बच जाएं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज लाहौर। गुजरावाला में निजी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से तलबा और तालिबात को हुनरमंद बनाने के लिए 10 मुफ्त टेक्निकल कोर्सेज और आम शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी का आगाज कर दिया गया। इकबाल मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। गुजरावाला के इलाके बुखारी रोड पर निजी वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से खवातीन के लिए 3 माह के सिलाई कोर्स और कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज किया गया है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंटिंग, ड्राइविंग और दीगर टेक्निकल कोर्सेज भी मुफ्त कराए जा रहे हैं। कंप्यूटर क्लासेस भी दी जाती हैं प्रॉपर से बच्चियों के लिए कि वो आगे स्टैंडिंग कर सके। तो कुछ बच्चियां तो इधर ऐसी भी हैं जो कर भी रही हैं, सीख भी रही हैं और साथ में अर्निंग भी उन लोगों ने स्टार्ट कर दी हुई है। 45-20 इतने इससे भी ज्यादा पैसे ले रहे हैं और यहाँ पे तो बिल्कुल फ्री है और इससे बड़ी बात है इनका टाइम भी बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। यहाँ पे हम इतने हो चुके हैं कि हम अपना रोजगार खुद चला सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लाना पड़ता। फाउंडेशन की जानब से मतवस्त तबके के अफराद के लिए हर किस्म की मुफ्त कानूनी मुशावरत की सहूलत भी मुयस्सर है। शहरियों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में एक ही छत तले शहरियों को हर किस्म की बिला मुआवजा सहूलियात की फराहमी काबिल सताइश और इंसानियत की खिदमत की बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरावाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बैचलर्स डिग्री शो का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा के पेश करदा फनपारों को शायकीन ने बेहद सराहा। मुल्क का सबसे मुनफरिद और तख्लीकी आर्ट पर मबनी NCA का डिग्री शो है। शोबा फाइन आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल, सिरामिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन, आर्किटेक्चर, फिल्म एंड टेलीविजन और म्यूजिकोलॉजी के मैदान में तलबा ने हुनर के खूब जोहर दिखाए। मेरा काम इंस्पायर्ड है रूंड और डैम्प वॉल्स से, खराब टूटी फूटी दीवारों से, कि उनको किस तरह से मैं खूबसूरत करके दिखा सकती हूँ। मेरी हर पेंटिंग लोगों के लिए अपनी परसेप्शन है कि वो किस तरह से उसको देखते हैं। बेसिकली हमने एक मॉल रोड की डॉक्यूमेंटेशन की है, वो पहले था कैसे, वो अब कैसा है और वो इंशाल्लाह रहेगा कैसे, तो हमारा ये काम है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तलबा के फनपारों की नुमाइश हर आंख को भा गई। इस प्रोजेक्ट में हमारे स्टूडेंट्स ने मॉल रोड की जो पूरी हिस्ट्री है जिसके अंदर लिटरेचर आता है, उसकी आर्किटेक्चर है, लोग हैं, वहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब को डॉक्यूमेंट किया है और उनसे इंस्पायर होकर अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वो जो भी लाहौर में आ सकते हैं NCA के डिस्प्ले पे वो ज़रूर आए बिकॉज इट्स रियली अमेजिंग दिस टाइम। सबका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हर डिपार्टमेंट का, कल्चर स्टडीज़ के सब स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा है। डिग्री शो के जरिए तलबा और तालिबात को अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका मिलता है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का डिग्री शो 28 जनवरी तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद जलील और फारूक अहमद के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज लाहौर। और अब आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के बर्फीले पहाड़ों, ऊंची आबशारों और दिलफरेब झीलों के हसीन नज़ारों को देखने के लिए साल 2024 में 10 लाख से जायद मुल्कियों गैर मुल्की सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। इम्तियाज अली ताज रिपोर्ट करेंगे। वसी ग्लेशियर्स के मैदानों और बर्फीले पहाड़ों में मुहिम जुई और यहाँ की मुनफरिद तहजीब और कुदरती हुस्न की एक झलक देखने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सालाना लाखों सयाह आते हैं। इनमें कोहपहमा, गैर मुल्की सुफरा और सकाफती वफूद भी शामिल हैं। महकमा सयाहत के मुताबिक साल 2024 के दौरान 16,500 गैर मुल्की और 9,86,000 मुल्की सयाह इन इलाकों में सैर तफरीह के लिए आए। साल 2023 की निस्बत 2024 में मुल्की सयाहों में 1.5 लाख और 2,000 से जायद गैर मुल्कियों की तादाद में इजाफा हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में सालाना लाखों मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की आमद से न सिर्फ कौमी खजाने को करोड़ों रुपए की आमदनी मिलती है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी माशी सरगर्मियों को गैर मामूली फरोग हासिल होता है। शहर से आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए शहर से और डॉन न्यूज।